This is Dharmendra Singh from your YouTube channel English Probe, and in this video I am present with you all with another lesson, very interesting lesson, Madam Rides the Bus, which was originally written by Vallikannan in Tamil, but here it has been translated from Tamil to English by K.S. Sundaram. So without wasting much time on the introduction, let us talk about the important points of the lesson. So some important points of the lesson are like this. The story is about an 8-year-old girl whose name is Valliammai. She was very curious to know about things. Her favorite pastime was to stand at the front doorway of her house and see what was happening in the street outside. Why was it her favorite pastime? Because she had none other child of her age who can play with her. So that is why this was the only pastime that she had adopted. She would watch the bus that passed every hour from her village to the nearest town. So she was quite interested in watching the bus, and because of this she developed a desire to ride the bus. This became her deepest desire. मीन्स उसकी बहुत ही बड़ी इच्छा ये हो गई कि उसको किसी भी तरीके से बस की सवारी करनी है. Valli found out the details of the bus journey by listening carefully to the conversations between her neighbors and regular bus users. So अपने नेबर्स को और जो लोग रेगुलरली बस यूज़ करते थे उनके बातों को सुन करके वल्ली ने बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है बस जर्नी के बारे में और बस राइडिंग के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी. शी केम टू नो दैट द टाउन वॉज जस्ट 6 miles फ्रॉम हर विलेज एंड द फेयर फॉर द बस जर्नी वॉज 30 पैसे वन वे. एक साइड का किराया जो था वो 30 पैसे था, यानी वापस आने तक उसको 60 पैसे किराए के लिए जुटाने थे अगर वो बस राइडिंग के लिए टाउन तक जाना चाहती थी. तो द ट्रिप टुक 45 minutes, दैट इज़ आल्सो वन वे टाइम. Valli planned her visit to the town. She saved 60 paise to the fare. How did she save it? She saved it very thriftily. बहुत जो छोटे छोटे करके उसको कभी भी पॉकेट मनी के फॉर्म में पैसे मिल गए, उनको उनमें से कुछ बच गए. So she saved them and finally she saved 60 paise which were required to go by bus to the town and return from there as well. Finally one day she took the 1 o'clock bus to the town. On the way to the town, Valli saw a cow running right in front of the bus. She clapped as the cow kept on running towards the bus despite the continuous honking by the driver. ड्राइवर जो है बार बार हॉर्न बजा रहा था, फिर भी बस जो काऊ जो थी वो बस के आगे ही दौड़ रही थी. That made Valli laugh and this was a very humorous scene for Valli. Valli was overjoyed by this scene. Valli did not get off the bus when it reached the town. बस से उतरी ही नहीं. जब वो टाउन में बस पहुंची तो बस से वो नहीं उतरी वल्ली. She also declined the offer of a cold drink by the conductor. कंडक्टर ने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक को ऑफर उसको किया, but she did not accept it. On the return journey, she saw the same cow lying dead by the roadside. वापस आने पे उसने देखा कि वही काऊ जो पहले टाउन में जाने के वक्त जो है जो काऊ उसको मिली थी, जिसको देखकर वो खूब खुश हो रही थी. राइट नाउ शी वॉज लाइंग डेड बाय द रोड साइड. दिस अनप्लेजेंट साइड मेड हर वेरी सैड. तब से लेकर के वो लास्ट तक लगभग दुखी ही रही उस काऊ की कंडीशन को देख करके. एंड दैट आल्सो प्रिडिक्ट दैट द लाइफ्स ऑफ लिविंग बींग्स आर अनसर्टेन. उनका लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब जो लाइफ है वो डेथ में चेंज हो जाए. द बस रीच्ड द विलेज एट 3:40. शी रैन स्ट्रेट फॉर हर होम आफ्टर गेटिंग डाउन द बस. हर मदर डिड नॉट कम टू नो अबाउट हर जर्नी. और इस तरीके से सीक्रेटली वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लेती है. So now let's talk about some important questions of the lessons. So the first question is like this: Who was Valliammai? अभी हमने बात किया कि Valliammai कौन थी. She was an 8-year girl. And what was her favorite pastime? और उसका favorite pastime क्या था, इसको भी अभी हमने introduction में कवर कर रखा है. So we can answer this question like Valliammai was an 8-year-old girl
शी वॉज अ मच्योर गर्ल बट डिड नॉट हैव एनी प्लेमेट ऑफ हर एज। वो थी तो काफ़ी मैच्योर्ड बट उसकी एज के कोई भी उसके प्लेमेट्स नहीं थे। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। ये उसका सिर्फ फेवरेट पास टाइम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी लाइक दिस, वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग दैट वली सॉ ऑन द स्ट्रीट्स। ऐसी क्या चीज़ थी जो वली ने स्ट्रीट पे देखी और वो बहुत ही फैसिनेटिंग उसको लगी। इट इज़ नॉट अबाउट द जर्नी, it is the street just before her house. So what was the most fascinating thing that Wali saw on the street? Let us know about it. Wali did not have any playmate of her age, as we have discussed. She had a pastime of watching outside in the street because she did not have any playmate. So she kept standing at the doorway of her house and watched outside into the street. She used to watch the new passengers boarding the bus every day. The arrival of the bus was the most fascinating scene in the street for Wali. अभी जिसकी बात हुई most fascinating scene क्या था उसके लिए, it was the arrival of bus and she was the passengers boarding the bus and to listen to their conversation. उनकी बातें सुनती थी, वो काफ़ी fascinate होती थी उनकी बातों को सुन सुन करके कि किस तरीके से जो बस राइडिंग है कितना जॉयफुल होती है और उसकी में क्या क्या मतलब जो है ज़रूरत होता है, कितना किराया होता है, कहाँ तक बस जाती है, रास्ते में क्या सीन होते हैं और बस के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं। ऐसी कन्वर्जेशन सुन सुन के वो काफ़ी फैसिनेट होती थी। द साइट ऑफ द बस वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। वली के लिए जो बस का जो सीन था, जब भी वो बस को देखती थी इतना खुश हो जाती थी कि मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। इट वॉज एन अनएंडिंग जॉय फॉर हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली सेव मनी टू ट्रेवल बाई बस। अभी हमने बात की थी कि उसने 60 पैसे बचा लिए थे अपने, लेकिन वो कैसे बचाए थे, बहुत ही थ्रिफ्टली उसने सेविंग की थी ये। सो लेट अस राइट द आंसर, वली हैड थ्रिफ्टली सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। जो भी छुटपुट जिनको कहते हैं स्ट्रे कॉइन्स जो उसको मिले एज अ पॉकेट मनी या फिर किसी काम के लिए मिले और 1-2 पैसे बच गए, उसने पेरेंट्स ने उसको रखने के लिए दे दिए। दिस वे शी सेव्ड that money which was required for the fair. She resisted every temptation to buy peppermints, toys, balloons and ride on the merry-go-round at the village fair. जब गांव में वही फेयर हुआ तो उसकी भी बहुत इच्छा हुई बाकी बच्चों की तरीके से वो भी जो है पेपरमिंट्स, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, टॉयज़, बलून्स ये सब एंजॉय करे, मेरी गो राउंड पे जाए। बट शी हैड द ओनली विश टू सेव द मनी फॉर द बस जर्नी एंड दिस इज़ हाउ she just resisted her temptations and saved the money for her bus journey. This is how she saved the money. Next question could be like this, how did Wali slip away from her house? जब उसने पैसे बचा लिए उसके बाद वो घर से निकली कैसे? Because we better know her mother would not have allowed her to go on bus journey, especially when she was going alone on being so small child. So how did she slip away from her house? So let us write this answer like this way. Wali had calculated that if she left her house at 1 o'clock, उसने पूरा कैलकुलेट कर रखा था कि अगर वो 1 बजे यहाँ से घर से 1 बजे की बस पकड़ती है, she would be back by 2:45, लगभग 2:45 पे वो वापस आ जाएगी. This was the time she could be away without the knowledge of her mother. और ये एक ऐसा टाइम था जब वो अपनी मदर के नॉलेज के बिना, मदर को पता भी नहीं चलेगा और वो आ जाएगी. रीज़न, दिस वॉज द रेस्टिंग टाइम ऑफ हर मदर, कि उसकी मदर जो है इस टाइम में रेस्ट करती थी, जनरली वो सो भी जाती थी. सो शी स्लिप्ड फ्रॉम हर हाउस एंड बोर्डेड द बस. और इस तरीके से कैलकुलेशन पूरा करने के बाद में 1 o'clock की बस पकड़ के वो अपनी जर्नी पे निकलती है. सो दिस इज़ हाउ शी मैनेज टू गो ऑन अ बस जर्नी. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड वली रिब्यूक द एल्डरली वुमन ऑन द बस. अगर स्टोरी में हम लोगों ने देखा है कि एक एल्डरली वुमन उसके पास आ जाती है, बहुत सारे उससे क्वेश्चंस करती है और वली डिड नॉट लाइक ऑल दैट. सो वली उससे गुस्सा हो जाती है. सो दैट इज़ द आंसर वी हैव टू डिस्कस हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो लेट अस राइट द आंसर. द एल्डरली वुमन ट्रीटेड वली एज अ चाइल्ड. सबसे पहली चीज़, वली, शी वॉज only an 8-year child. So obviously the elderly woman was surely and naturally उसको जो है एक चाइल्ड की तरीके से ही ट्रीट करती. सो शी ट्रीटेड हर लाइक अ चाइल्ड, बट शी आस्क्ड हर मैनी क्वेश्चंस
हुआ क्या, उसने कई सारे क्वेश्चंस उससे पूछे. शी ट्राई टू मेक वली फील दैट इट वाज नॉट प्रॉपर फॉर अ चाइल्ड टू ट्रेवल अलोन. उसने मतलब इस तरीके से बात की कि एक बच्चे को अकेले ट्रैवल करना अच्छा नहीं होता है, ऐसा जताने की कोशिश की. वली डिड नॉट लाइक हर अपीयरेंस एंड अननेसेसरी इंटरफेरेंस. सो दैट इज़ वाई शी रिब्यूक्ड हर सेइंग दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड एंड शी कुड टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. उसने उस एल्डरली वुमेन से वो नाराज़ भी हो गई और उससे कहा कि वो चाइल्ड नहीं है. शी कैन टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है. सो दिस इज़ हाउ दिस ऑल थिंग हैपेंड विद द एल्डरली वुमेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड वल्ली नॉट गेट डाउन फ्रॉम द बस इन द टाउन. टाउन में जब बस पहुंची तो वल्ली जो है बस से नीचे क्यों नहीं उतरी. रीज़न वॉज सी ओनली वॉन्टेड टू एन्जॉय बस जर्नी. हर पर्पज़ वॉज नॉट टू गो एंड विजिट द टाउन एंड वॉक इन टू द टाउन. सो क्यों नहीं उतरी. लेट अस राइट द आंसर. वल्ली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन बिकॉज शी हैड टू कम बैक टू हर विलेज बाय द सेम बस. कि अगर वो उतरती तो शायद बस चली जाती और उसको उसी बस से वापस भी आना था. एंड शी डिडंट नो हाउ लॉन्ग द बस विल टेक फ्रॉम मूविंग बैक फ्रॉम देयर. सो शी वांटेड टू go back to her village by the same bus. When the conductor asked her to get down, जब कंडक्टर ने उसको जो है नीचे उतरने के लिए कहा, she refused to do so. She was afraid of moving alone. सेकेंड चीज़, उसको जो है अकेले भी चलने फिरने से कभी टाउन नहीं आई थी. This was the first incident when she had travelled by bus and came to the town and saw all those scenes over there. So she was afraid of moving alone. Moreover, she did not have money to buy things from there. घूम कर भी क्या फ़ायदा था when she did not have any money to buy the things. She had the money only to pay her fare. So that is why she did not get down the bus in the town. So the next question could be like this, how did Valli feel on seeing the dead cow on the road. So अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था in the value points that जब उसने डेड काऊ को देखा, सेम काऊ देखा कि वो डेड पड़ी थी, तो तब से लेकर वो काफ़ी सैड हो गई थी. So let us write the answer in this way. Valli was filled with sadness. वल्ली जो है पूरा दुख से भर गई. She thought What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago. काऊ जो थी अभी कुछ देर पहले जब वो टाउन की तरफ आ रही थी तब उसने देखा था कि काऊ कितनी लवेबल क्रिएचर थी. उसको देखकर उसको खूब उसने एंजॉय किया था. शी वॉज रनिंग व्हेन द ड्राइवर वॉज हॉन्किंग द बस एंड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ. और अब अचानक क्या हुआ, थोड़ी ही देर में उसका पूरा जो अट्रैक्शन है, चार्म है, उसकी लाइफ है, वो सब का सब उससे छिन गया है. एंड लुक सो हॉरिबल एंड फ्राइटनिंग. अब मरने के बाद इतना हॉरिबल और फ्राइटनिंग दिख रही है. सो सी लर्न अ लेसन दैट लाइफ इज़ अनसर्टेन. सो ये भी हुआ एंड सी फील्ड विद सैडनेस आफ्टर दैट टाइम. नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स because this story teaches us different values of life. So let us think and talk about those values. Valli dared to travel alone in the bus and behaved haughtily, means proudly. She behaved in a proud manner with everyone who showed care and concern for her. So why do you think she was behaving in such a way? Because she was only an 8-year child, then she was behaving so proudly. So why was she doing so? Was it proper on her part to go to the city without the knowledge of her mother? सेकेंड चीज़ हमें पता है कि बिना अपनी मदर के परमिशन के, बिना उसकी नॉलेज के वो गई थी, सीक्रेटली गई थी वहाँ से. Was it right? Was it proper on her part? And what advice would you give to such children? अगर ऐसे बच्चे आपकी लाइफ में कभी आपको पता चले कि कोई ऐसा किसी ने किया है, तो what would you like to advise that child? So this is a kind of value and we have to develop these values. First of all, we have to think whether she was correct in doing so or not, and after that we have to think about the advice to such children. So as Valli was traveling alone in the bus for the first time, it was natural on her part to behave like this. So पहली बार travel कर रही थी तो natural था, उसके लिए स्वाभाविक था कि इस तरीके से behave करती. Initially she seemed haughty. शुरुआत में तो वो जो है proud दिखी वो, but later on she joined other people, though maintaining a distance. In fact, Valli was a very confident and mature girl. और बात करें वल्ली की, तो she was very confident and mature girl as we have found in the lesson. She saved her pocket money and planned carefully for the journey. उसने अपनी पॉकेट मनी को बचा बचा के अपनी जर्नी के लिए थोड़े पैसे
कलेक्ट कर लिए थे. शी न्यू दैट द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज स्ट्रेंज टू हर. उसको अच्छी तरीके से पता था जो बाहरी दुनिया है जिसको उसने कभी नहीं देखा है. इट वॉज जस्ट अ स्ट्रेंज थिंग फॉर हर, सो शी वॉज बींग एक्स्ट्रा कॉशस. तो इस तरीके से हॉटी होकर के वो एक्स्ट्रा कॉशस हो रही थी कि बाहरी दुनिया उसको फूल ना बना पाए. नेक्स्ट इज़ आई अप्रिसिएट हर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर इस तरीके की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें जो उसने दिखाई, सो आई अप्रिसिएट हर, बट इट वॉज ऑल्सो नॉट प्रॉपर ऑन हर पार्ट टू गो आउट अलोन विदाउट टेलिंग हर पेरेंट्स. लेकिन बात करें बिना पेरेंट्स की परमिशन के, बिना पेरेंट्स को बताए हुए जो वो गई थी, दैट वॉज नॉट अ राइट थिंग. ऐसा नहीं करना चाहिए था. चिल्ड्रन मस्ट कन्फाइड इन देयर पेरेंट्स वट एवर दे डू. जो भी वो करते हैं अपने उनके पेरेंट्स की नॉलेज में होना चाहिए. आवर एल्डर्स हैव एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड अंडर देयर गाइडेंस वी कैन मेक आवर लाइफ अ सक्सेस. हमारे एल्डर्स जो हैं, हमारे पेरेंट्स हैं या और भी एल्डरली पीपल हैं, they have more experience and more knowledge that we have. So that is why if we seek their guidance, we can make our life a successful life. This is only then possible. We will take one more question that will be value based question. Curiosity is the mother of learning. एक कहावत है, क्यूरियोसिटी जो है लर्निंग. अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो हम नई चीज़ें नहीं सीख सकते हैं. इफ़ वन हैज़ एन अर्ज टू नो मोर अबाउट एनीथिंग वन लर्न्स मैनी थिंग. अगर हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जानने की इच्छा होती है तो हम कई सारी चीज़ें सीख पाते हैं. वल्ली ऑल्सो हैज़ एन अर्ज टू नो मोर एंड मोर अबाउट द थिंग्स एंड हर सराउंडिंग्स विच मेक्स हर एन इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट एंड मैच्योर गर्ल. सो वॉट ट्रैट्स ऑफ हर कैरेक्टर मेक हर सो. ऐसे कौन कौन से उसके कैरेक्टर के ट्रैट्स हैं जो उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं या उसको ऐसा बनाते हैं. ऐसा बनाते हैं मतलब इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और मैच्योर बनाते हैं. ऐसे कौन कौन से ट्रैट्स हैं उसके कैरेक्टर्स में. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम हर कैरेक्टर. हम लोग उसके कैरेक्टर से क्या सीखते हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट इट, सो लेट अस discuss about it. Curiosity is the mother of learning. Of course, if one has an urge to know more about anything, one learns many things. Sure, it is correct. Wally also has an urge to know more and more about the things and her surroundings. The people and surroundings are a good book to learn. ऐसा कहा जाता है जो हमारे सराउंडिंग्स के लोग होते हैं या जो एटमॉस्फेयर होता है, ये एक बुक की तरीके से होता है जो हम बहुत अच्छी तरीके से इनसे सीखते हैं. बुक से शायद उतनी जल्दी से ना सीखें जितना हम लोगों के बीच में रहकर और सराउंडिंग से सीखते हैं. वली इन द लेसन मैडम राइज द बस लर्न्स अ लॉट फ्रॉम अदर्स. और ऐसा ही इस लेसन में देखने को मिलता है वली के साथ में. शी ऑलवेज एन्जॉयज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस टू वॉच वेरियस एक्टिविटीज़. दैट इज़ हर क्यूरियोसिटी. उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से ही वो जो है फ्रंट डोर पे खड़े होकर बहुत सारी स्ट्रीट्स में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखती है, बस को देखती है, पैसेंजर्स को देखती है, उनको बहुत ही क्यूरियस होकर सुनती है. शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. शी हैज़ अ डीप अर्ज टू ट्रैवल बाई बस. और उसके अंदर एक डीप क्यूरियोसिटी जगती है कि मतलब जो है वो बस से ट्रैवल करे वो भी. सो शी लिसन्स केयरफुली टू द कन्वर्जेशन ऑफ द नेबर्स. शी हैज़ अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड डज नॉट हेजिटेट इन आस्किंग दम. उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो पूछने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती है. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस. सो ये कॉन्फिडेंस था उसका. शी समटाइम्स आस्क डिस्क्रीट क्वेश्चंस टू गेट डिटेल्स अबाउट द जर्नी की डिटेल्स जानने के लिए बहुत सारे छोटे बड़े हर टाइप के क्वेश्चंस वो लोगों से पूछती है. वाइल ऑन हर जर्नी टू द टाउन शी बिकम्स फ्रेंडली विद द कंडक्टर हु गिव्स हर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी ऑफ वल्ली. As well as because she is talking to a strange person, conductor, to whom she had never talked before, but right now she is talking. That is also kind of intelligence of Wally as well as confidence. Her curious nature makes her intelligent and confident as well. So as a student, I learn from her that we should have an urge to know more. Curiosity हमारे अंदर होनी चाहिए. That is called an urge to know more. It makes one confident and intelligent. So this, as a student, we all learn from the character of Wally. So thank you very much. This is all about the lesson and I hope you must have found it very useful. So if you have found it very useful, one request, please like the video, subscribe the channel and share it among your friends to benefit them. Thank you very much. Have a nice time. Thank you.